हेलो एंड वेलकम टू श्री राम IAS। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली डिस्कस्ड फ्रेज, दैट इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। नाउ दिस इज नॉट द ओनली फ्रेज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. Besides this phrase, there are complex cases like the cases of UAPA, Unlawful Activities Prevention Act. Further, there are multiple other cases which involve terrorism, national security and fundamental rights. We as a nation, India, believes in democracy. We have constituted our constitution in such a good manner that this constitution made our nation survive for so long. Besides this, all the other nations have changed their constitutions multiple times. But yes, the separation of power is not that much watertight compartmentalized, but it has its interlinkages. It has a mechanism of checks and balances. In this perspective, we need to understand that how actually judiciary is getting overburdened because of multiple complex cases. And whenever a case is complex, which means its solution will take time. For that time, we need to give a judge particular tenure to solve that case. क्योंकि अगर किसी जज को बोल दिया कि आप ये केस हैंडल कर लो और उसका रिटायरमेंट 10 महीने या 5 महीने या 4 महीने के बाद हो गया, अब नेक्स्ट जज आएंगे और वो भी उस केस को स्टार्ट से सुनेंगे, टाइम लैप्स होता जाएगा एंड देयर विल बी एन ओवरलैप. सिमिलरली बहुत सारे ऐसे केसेस हैं एंड पर्टिकुलरली टू द NIA कोर्ट्स. इसका अभी रिसेंटली डायरेक्टिव आया है सुप्रीम कोर्ट से. डायरेक्टिव वेरी सिंपल है कि जब भी कोई ऐसा NIA या आई वुड से UAPA के अंदर कोई केस आएगा तो वी शुड कॉन्स्टिट्यूट एक्सक्लूसिव कोर्ट्स विच विल डील विद NIA केसेस ओनली. अगर हमें यह समझ में आ गया तो अब हमें इसके साथ साथ एक और चीज समझनी पड़ेगी कि इस कोर्ट को बनाने के बाद क्या दिक्कत होगी, और अगर हमने ये कोर्ट बना भी दिया तब भी केसेस पेंडेंसी क्यों इंक्रीज हो रही है, अभी भी केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग क्यों है. जैसे एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स इज दिल्ली का पटियाला कोर्ट. और पटियाला कोर्ट का एग्जांपल इसलिए है क्योंकि वहां पे बहुत सारे जाने माने केसेस अभी भी पेंडिंग है, चाहे वो क्या बोलते हैं इसको, जो हाफिज सईद है उनका केस हो, चाहे बहुत सारे लोग और भी है जो टेररिस्ट थे और उनका केस भी अभी भी वहीं पे लगा हुआ है. पर्टिकुलरली वो केसेस जहां पे पिछले 2022 से लेके आज तक बहुत सारे जजेस को अपॉइंट किया गया और बार बार उनको ट्रांसफर किया गया, या तो उनका रिटायरमेंट आ गया 11 महीने के अंदर अंदर, एवरेज 11 महीने का, और अभी जो है 5वां जज वहां पे अपॉइंट किया जा रहा है सिंस 2022. ड्यू टू दिस देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स व्हिच आर हैपनिंग. सो देयरफॉर लेट्स अंडरस्टैंड, इस टॉपिक से मींस का क्वेश्चन बन सकता है, आराम से बन सकता है, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच UPSC विल टारगेट. स्पेशल कोर्ट्स, ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स जो बनाए गए थे क्योंकि ट्रिब्यूनल्स पे भी क्वेश्चन आ चुका है ना, फास्ट रिकवरी और स्पीडी ट्रायल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी बन सकता है. That which are envisaged for speedy justice in complex cases still are facing delays. Why? Discuss it in reference to NIA courts. So let's understand this question and what is the matter lying behind. Before that, if you want any kind of assistance from us at Shri Ram's IAS, we are always open to help you all, particularly in the respect of mentorship. What you need to do, first join the Telegram channel. Second, if you have any queries regarding any part of the preparation, you can directly contact us over here. If you have any other thing to say or to discuss with me, here are my contact details. You can join the Telegram groups, you can join any other thing, and you can get connected with me also. Done. Let's move ahead. What is the issue? The issue is recently Supreme Court's direction came in. Now this direction is particularly about something which is crucial in nature. First, creation of exclusive NIA courts. Second, time-bound disposal of UAPA cases. Obviously, yes. And this should be morally, or I would say logically, it should be around in 1 month only. But is it possible to dispose of a case in 1 month or 2 months or 6 months? Let us see in detail. Day-to-day hearing in terror-related cases should be held. Now, are the judges that much free that they will take day-to-day cases? Or they will hear a case at length per day, one case one day. Further,
there should be no additional workload to those judges who are involved in these cases of terrorism. That is what Supreme Court has said. The objective is very simple, that is to reduce the pendency of courts where more than 4 crore cases are still pending in the higher judiciary. Done. So that is why this directive came from the Honorable Supreme Court. Now moving further, what is UAPA? Unlawful Activities Prevention Act 1967. What is it? It is basically about the terrorism. It is an anti-terror act. It is an anti-terror law. समझ में आ गई बात? अब हमें समझना ये है कि UAPA के साथ NIA का क्या काम है. NIA which was established through NIA Act of 2008. किस लिए? For the counter-terrorism law enforcement. Simple. It is an investigating agency particularly related to terrorism cases so that ये cases को जल्दी से solve किया जाए because national security is at the topmost priority. अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो ये भी समझ में आना चाहिए कि terrorism, cross border crimes, organized crimes, particularly terror financing and I would say हवाला, इसके साथ साथ I would say smuggling of not only gold, not only the drugs but also of the fake currency. These all cases are interrelated. क्योंकि अगर आप देखें organized crime is not one simple crime. यहाँ पे terrorism, यहाँ पे I would say internal or external insurgency, यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यहाँ पे लोकल क्राइम गैंग्स, यहाँ पे हवाला ग्रुप्स और क्राइम सिंडिकेट्स सब एक साथ काम कर रहे होते हैं ताकि इन सब के फाइनेंसेस चलें, फाइनेंसेस के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग हो और ये बस हमारे नेशनल लेवल पे नहीं होगा, ये हमारे स्टेट लेवल पे नहीं होगा, ये इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है. सो देयरफॉर देयर नीड्स टू बी कोऑर्डिनेशन विद द इंटरनेशनल एजेंसीज आल्सो. अगर यहां तक समझ में आ गया है तो एक और चीज समझनी जरूरी है. वो क्या है कि यूएपीए तो समझ में आ गया सर, सुप्रीम कोर्ट का जो ये नया डायरेक्टिव है इसके अंदर फ्रेमवर्क क्या है. फ्रेमवर्क बहुत सिंपल है कि इस कॉम्प्लेक्स केस को, जो मैंने अभी तक बताया कि केसेस कॉम्प्लेक्स क्यों है, इस कॉम्प्लेक्स केस को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए. बहुत सिंपल. अगर किसी कोर्ट के अंदर, अगर किसी भी कोर्ट के अंदर 10 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है तो एक एनआईए कोर्ट स्पेशली डेडिकेटेड होना चाहिए उन्हीं 10 केसेस के लिए. 15 से ज्यादा केसेस है तो 2 कोर्ट्स बनने चाहिए और 25 से ज्यादा केसेस है तो 3 कोर्ट्स बनने चाहिए. और कोर्ट्स बनेंगे तो करेंगे क्या, दे विल ट्राई टू सॉल्व द केसेस जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था, अभी 5 मिनट पहले डिस्कस किया था कि वो सॉल्व करेंगे केसेस. कैसे? यूजुअली आइडियली अ केस शुड टेक अराउंड 1 मंथ. तो देयरफॉर अगर धीरे धीरे ये केसेस खत्म हो जाएंगे तो हमारी पेंडेंसी खत्म हो जाएगी, जजेस फ्री हो जाएंगे और वो बाकी सिविल या क्रिमिनल मैटर्स पे बैठ जाएंगे और वहां से भी केसेस को खत्म कर देंगे. दैट इज वन सिंगल सोल्यूशन और वन सिंपल सोल्यूशन विच सुप्रीम कोर्ट हैज प्रपोज्ड. बट विल दिस सोल्यूशन वर्क? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड. जो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा था उस क्वेश्चन में तो यही चीज है कि अभी भी पेंडेंसी क्यों है. फिर भी अगर ये केसेस के लिए हमने स्पेशल कोर्ट्स बनाए और स्पेशल कोर्ट्स बन भी गए, समझो इस चीज को, क्वेश्चन एक स्टेप आगे जाके पूछा गया है. इस क्वेश्चन में दिमाग लगा हुआ है. ये क्वेश्चन एक स्टेप आगे है. ये बोल रहा है कि जब ये कोर्ट्स बन जाएंगे, उन कोर्ट्स के बनने के बाद भी अब बताओ अभी भी पेंडेंसी क्यों है. दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, अंडरस्टूड. नाउ व्हाई दिस सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्ड इनटू दिस? बिकॉज देयर इज हाई लार्ज अंडर ट्रायल पॉपुलेशन, जिनकी जो अंडर ट्रायल है अभी. और अंडर ट्रायल होने का मतलब क्या है कि वो अभी विदाउट गेटिंग कन्विक्ट और अभी उनको पनिशमेंट मिला नहीं है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आया नहीं है, फाइनल जजमेंट आई नहीं है, अभी भी वो जेल में ही है. अब समझो वो अंडर ट्रायल ही 5 साल 6 साल 10 साल गुजार लेते हैं जेल में और कभी कभी अंडर ट्रायल ही मर भी जाते हैं, तब भी केस की हियरिंग नहीं हो रही होती है. दैट इज अ प्रॉब्लम. दैट इज व्हाई वी से जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. देयर इज स्लो इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल्स. फ्रीक्वेंट जजेस आर बीइंग फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड, जिसकी वजह से क्या होगा? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क.
एक जज आया, उसने केस सुना, 2 महीना 4 महीना 5 महीना हो गया, उसका ट्रांसफर हो गया, दूसरा जज आया, अब वो भी इस केस को पहले से ही सुनेंगे, बिकॉज जज को भी केस स्टडी करने के लिए उसकी हियरिंग्स को सुनना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट्स को सुनना पड़ता है, तभी जाके तो लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा। अंडरस्टूड? There are long pending conviction incarcerations because accused they spend years in jail before getting finally adjudicated. But ठीक है, चलो यहां तक तो समझ में आ गया है कि डिले है। प्रॉब्लम कहां पे है डिले में? डिले में प्रॉब्लम ये है, there is a conflict between national security and Article 21. Article 21, which ensures right to life and liberty, is directly or indirectly getting compromised because इतना सारा reasons है। क्यों? क्योंकि एक इंसान जिसको जेल में बंद कर दिया गया जस्ट एक चीज के बेसिस पे कि उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं और उसका केस कोर्ट में चल रहा है। अब इसमें 5 साल लगे, 10 साल लगे, वो तब तक उसका राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ वो तो खत्म हो गया ना, वो तो जेल में बंद है। अब क्या होगा? नाउ दैट इज हाउ इट गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड अ लिटिल बिट। एन एग्जांपल ऑफ पटियाला कोर्ट की पेंडेंसी कैसे इंक्रीज होती है। नाउ दिस इज अ केस स्टडी विच यू कैन ऑल्सो कोट इन योर आंसर्स। अब इस केस स्टडी को कोट करने से पहले या इस केस स्टडी को जब भी आप कोट करोगे तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। दैट रिसेंटली द जज हु वर ट्रांसफर्ड हियर, इट वाज जस्टिस प्रशांत शर्मा, और नवंबर 2025 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, और अब जो है 5th जज है वहां पे, विच वाज हु वाज पोस्टेड सिंस देन। अगर आप देखो तो एवरेज में 11 महीने का टेन्योर है हर एक जज का। अब आप समझो, अगर हर 11 महीने में जज ट्रांसफर हो रहे हैं या जज का रिटायरमेंट आ रहा है और वो जज जो इस केस पे बैठा हुआ था, दिस विल अननेसेसरली वेस्ट द जुडिशियल टाइम एंड दिस विल डिले द जस्टिस फॉर ऑल द पार्टीज बिकॉज दे विल अगेन हियर द केस। सिंपल। कोर्ट में, पटियाला कोर्ट में अगर आप केसेस का लोड देखो तो द रेशियो इज टू मच। 81 केसेस आर बीइंग हैंडल्ड बाय पटियाला कोर्ट ओनली। कितने केसेस? 81 केसेस। हाँ, जबकि उसमें से यूएपीए या एनआईए की केसेस हैं 43, दैट इज 50%। बट अगर आप देखो, समझो इस चीज को, पटियाला कोर्ट इज हैंडलिंग 8 टाइम्स मोर केसेस दैन द सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन है बस 10 ही केसेस होने चाहिए पर कोर्ट, और अगर किसी कोर्ट में 10 केसेस से ज्यादा है जो पेंडिंग है एनआईए केसेस, तो वहां पे एक स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश करनी चाहिए। किसके लिए? एनआईए कोर्ट। अंडरस्टूड? The problem with पटियाला कोर्ट इज दिस, दैट वहां पे 43 केसेस हैं, बट एक्चुअल में 10 के बाद 10 से ज्यादा केसेस होंगे तो एक एनआईए कोर्ट एस्टैब्लिश होनी चाहिए। और एनआईए कोर्ट में एक और चीज है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए दैट एविडेंस और एग्जामिनेशन, एविडेंस का एग्जामिनेशन और जस्टिस ये पूरे स्पीच का या पूरे आर्ग्यूमेंट को दोबारा से सुनने का ये नहीं होना चाहिए। रादर देन व्हाट, कि अगर कोई जज रिटायर भी होता है इस टेन्योर में, ही शुड कंटिन्यू लिसनिंग टू द केस ताकि केस कंक्लूड हो जाए। दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड इन एनआईए एक्ट सेक्शन 11, एनआईए एक्ट 2008, which mentions that central government can permit I would say can permit, remember this, can permit continue hearing a case even after the retirement. That is what should be conducted. Now we will come to that again later. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ड्यू टू डुप्लीकेशन देयर विल बी इंक्रीज्ड कॉस्ट एंड देयर विल बी डिलेड जस्टिस। समझ में आ गई बात? अब एक और चीज याद रखनी है, why delay happens, because NIA provisions और UAPA provisions are very much stringent. इन केसेस को डील करना भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टीडियस टास्क है, एंड एवरेज में 3 to 7 years टाइम लगता है एक एक केस को सॉल्व होने में। समझ में आ गई बात? ये कुछ केसेस है जिनका एग्जाम्पल आप मेंस के आंसर में लिख सकते हो, विच आर हैंडल्ड बाय पटियाला कोर्ट, जब आप इस केस स्टडी को मेंशन करोगे। Understood that what is the reason behind long pendency of cases, particularly in some courts when it comes to NIA cases or when it comes to national security. समझ में आ गई बात? चलो लास्ट में ये तो हमने डिस्कस कर लिया है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। Now structural causes of the delay, judicial factors, case complexity and administrative issues which actually lead to delay in the cases. हाँ, सबसे important slide is way forward that what more can we do in such manner. इन केसेस को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है? There should be a balance in the perspectives of national security and rights perspective, that हमें fundamental rights भी बचाने हैं और हमें सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव भी नज़रअंदाज नहीं करना है। हमने नेशनल सिक्योरिटी को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखना है, बट हमें लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट नहीं करना है। इसीलिए देयर शुड बी स्पीडी ट्रायल
and there should be effective anti-terror prosecution and speedy and fair trials. Now कैसे करेंगे? सबसे पहले तो NIA कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करना है और उसके बाद fill the judicial vacancies, reduce the judges transfers, institute digital system so that all the cases can be read and recorded properly. ठीक है, बाकी जो लीगल प्रोविजन है वो ले सकते हैं. These are the 4 points which you can mention in your answer as way forward. डन. यहां तक हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त, टॉपिक होता है समाप्त. यहां पे मैं आपको छोड़ दूंगा, बट इसके बाद ये क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट में पूछा था उस क्वेश्चन का मॉडल आंसर है. अगर आपको पढ़ना होगा, अगर आपको इस आंसर को चाहिए, मॉडल आंसर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, वहां पे ये पीपीटी शेयर हो जाएगी, या फिर मुझे डीएम कर देना, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा. विद दिस वी विल स्टॉप ओवर हियर. आई will say goodbye to you and I'll wish that you succeed in your dreams. Thank you once again for being here. Jai Hind.